اور اب خبر تفصیل سے LG منوج سنہا نے جموں کے بجلٹا نامی علاقے میں 41 کروڑ روپے کی لاگت کے 20 پاور ڈسٹریبیوشن پاور پروجیکٹس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے LG نے کہا کہ اضافی صلاحیت میں اضافہ جموں، ادھمپور، ریاسی، پنچ، راجوری اور ملحقہ علاقوں کی بجلی کی ضروریات میں بڑے فرق کو پورا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ UT انتظامیہ جموں کشمیر میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تمام حصوں میں بجلی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ LG نے گزشتہ روز ہی ضلع سانبا میں 22 پاور پروجیکٹس کا افتتاح کیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہے یہ کل 41 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ پریوجنائیں تیار ہوئی ہیں اور ان کے پورا ہونے کے کارن جموں، پنچ، راجوری، ادھمپور تتھا ریاسی جنپد کے ناگرکوں کو پہلے سے بہتر بجلی کی آپورتی سنشچت ہو پائے گی۔ آج ہی بجالتا ریسیونگ اسٹیشن کا بھی ادگھاٹن ہوا ہے کچھ دیر پہلے۔ میں پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے سبھی ساتھیوں کا اور پاور گرڈ کے سبھی ادھیکاریوں، سبھی انجینئرز، سبھی کرمچاریوں کو اس کے لیے سادھواد بھی دیتا ہوں اور بدھائی بھی دیتا ہوں۔ کٹھن پرستھتی میں کام کر کے PDD نئی کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ کسی چھیتر کے تیز آرتھک وکاس میں بجلی کی پریاپت اپلبدھتا یہ میں مانتا ہوں کہ یہ اپریہاریہ آوشکتا ہوتی ہے۔ جموں کشمیر کے LG منوج سنہا نے بالاکوٹ ایئر اسٹرائیک پر اپوزیشن کی جانب سے سوال کھڑے کیے جانے پر اپنا رد عمل دیا۔ منوج سنہا نے کہا کہ ملک کو سیکیورٹی فورسز پر فخر ہے اور ان پر کوئی سوال نہیں کھڑے کیے جا سکتے۔ حد بندی معاملے پر LG نے کہا کہ اگر ایسوسیٹ ممبرز کو اعتراضات ہیں تو وہ کمیشن کو اس سے واقف کرائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس دیش میں سینا کے شورے پر کبھی سندے کسی کو نہیں تھا اور جو سینکوں کا سمان اس دیش میں ہے اور جس طرح سے ہماری سینا نے پچھلے 70-75 سالوں میں کام کیا ہے، پورا راشٹر گورواندت ہے اور بھگوان ایسے لوگوں کو سدبدھی دے جو دیش اور سینا کے بارے میں اچھے وچار ان کو پراپت ہو۔ سر، ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو لے کر ایس نے جو ہے کچھ آبجیکشنز فائل کی ہیں کہ جس طرح سے کچھ سیٹوں کو جوڑا گیا، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ کسی پرٹیکولر پارٹی، میں پہلے بھی اس بات پر بتا چکا ہوں کہ چناؤ آیوگ ایک سنویدھانک سنستھا ہے اور پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا ہے ڈیلیمیٹیشن ایکٹ، اس کے انوسار وہ کام ہوتا ہے۔ لوکتنتر میں سوتنترتا ہے، بھارت کا سنویدھان سب کو آزادی دیتا ہے بولنے کی، اور مجھے لگتا ہے کہ جو ایسوسیٹ ممبرس ہیں ان کو اگر آپتی ہے تو آپتی درج کرنی چاہیے، پھر وہ پبلک ڈومین میں آئے گا تو سامانیہ ویکتی کو بھی اگر کہیں لگتا ہے کہ غلطی ہوئی تو ان کو نشچت روپ سے کرنا چاہیے۔ لوکتنتر کی ہماری اس بیچ بجلی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے LG کی طرف سے اٹھائے گئے قدم کی عوامی حلقے کی جانب سے ستائش کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو امید ہے کہ نئے پروجیکٹوں سے UT میں بجلی کی کمی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ میٹر ہے، میں تو بہت خوش ہوں کہ میرے گھر میں 24 گھنٹے لائٹ رہے گی، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم مایوس ہوں گے۔ لیکن ادروائز جو بھی انیشیٹو لیا ہے بہت اچھا انیشیٹو لیا اور امید کرتا ہوں کہ آگے آنے والے سمے میں اس سے اچھے اور انیشیٹو لے۔ بہت خوشی ہے کیونکہ بجلی کی بات کریں تو آج آپ کے لائف کا ایک اسینشیل پارٹ ہے اور اس کے بنا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو بہت سی سہولیت ملے گی۔ آگے آپ گرمی آنے والی ہے تو مکھیتہ انہوں نے اس لیے بولا ہوگا کہ لوگ جو گرمی سے پریشان ہوتے ہیں وہ نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ اپنی کمٹمنٹ پہ کھڑے اترتے ہیں اور 24 گھنٹے بجلی دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو تھوڑا ٹائم جو ہے وہ اور مل جائے کرے گا، جو ہم رات کو 1-2 گھنٹہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتے تھے، ڈسٹرب ہوتے تھے، تو اب ایسا جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت خوشی کی بات ہے ہم لوگ۔ کئی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لائٹس بند ہو جاتی ہیں گرمیوں میں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کتنا مشکل ہوتا ہے گرمی سے نپٹنا، اور ساتھ میں لوگوں کو بہت ساری پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی حد بندی کمیشن کی تجویز کے مسودے پر اپنے اعتراضات شیئر کرے گی۔
जम्मू में न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वर्किंग कमेटी के मेंबरान के साथ कश्मीर और जम्मू दोनों जगहों पर तजावीज़ के मसवदे पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि जुमे को पॉइंट टू पॉइंट एतराज़ात शेयर किए जाएंगे। बुखारी ने इल्जाम लगाया कि कमीशन ने बीजेपी के हक में अपनी सिफारिशात का मसवदा पेश किया है और अपनी पार्टी पहले ही इन तजावीज़ को मुस्तरद कर चुकी है। पहले ही रिजेक्ट किया है 20 दिसंबर को उस ड्राफ्ट रिपोर्ट को, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं और हम बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि कहाँ पे सही हुआ है, कहाँ पे गलत हुआ है और कैसा होना चाहिए। क्योंकि एक डिलिमिटेशन लोगों की नुमाइंदगी की एक्सरसाइज होनी, पार्टियों की नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए, लोगों की नुमाइंदगी होनी, और लगता है ये डिलिमिटेशन पार्टियों की नुमाइंदगी के लिए। जम्मू कश्मीर के 4 साबिक वज़राए आला के सिक्योरिटी में तखफीफ में कमी पर रद्दअमल जाहिर करते हुए बुखारी ने कहा कि मुमकिन है कि यह फैसला तमाम इक़दामात को मद्देनजर रखते हुए किया गया हो। तो जो जिसकी असेसमेंट है उसके हिसाब से दिया जाए। इट्स नॉट अ स्टेटस सिंबल एंड इट शुड नॉट बी अ स्टेटस सिंबल, इट शुड बी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से देना चाहिए। इसमें कोई ना फॉर्मर और ना प्रेजेंट होनी चाहिए। इसमें बात तो मैंने कहा ना, छोटे से छोटा पॉलिटिकल वर्कर भी कहीं शायद उसको उतनी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है जितनी फॉर्मर मिनिस्टर को नहीं किसी और जगह, क्योंकि ये देखना है थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी स्टेट में थ्रेट परसेप्शन के लिए जो अफसरान जिम्मेवार हैं उन्होंने पूरा सोच समझ के ही कोई डिसीजन लिया। न्यूज 18 उर्दू ने श्रीनगर में कुछ सेहत मुलाजमीन के बाज डायग्नोस्टिक सेंटर्स की मिली भगत से किए जा रहे टेस्ट घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस खुसूसी रिपोर्ट में CHC नारवाड़ा के मुलजिम लैब टेक्नीशियन पर किया गया स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया जाएगा। पेश है हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की यह खास रिपोर्ट। श्रीनगर में टेस्ट घोटाले का पर्दाफाश। कुछ सेहत मुलाजमीन और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के बीच मिली भगत। लैब रिपोर्ट्स में मरीजों को दिया जा रहा है धोखा। मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत। कौडारा के शब्बीर अहमद भट्ट बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बीवी एक तवील वक्फे के बाद हामिला हुई थी। शब्बीर ने कोई खतरा मोल न लेते हुए अपनी बीवी के बार बार सेहत के चेकअप को अव्वलीन तरजीह दी। 4 फरवरी को शब्बीर अपनी बीवी को CHC नारवाड़ा में डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने कुछ टेस्ट तजवीज किए। कुछ टेस्ट CHC में किए गए थे, जबकि THC और प्रोलैक्टिन टेस्ट इस सेंटर में दस्तयाब नहीं थे। इस बीच CHC नारवाड़ा के एक लैब टेक्नीशियन मुदस्सिर अहमद ने शब्बीर को पेशकश की कि वो ये टेस्ट एक नामवर डायग्नोस्टिक सेंटर से कराएं। जैसे ही शब्बीर को इन टेस्ट की रिपोर्ट दी गई, शब्बीर और इनके डॉक्टर को इसमें कुछ गड़बड़ी लगी। शब्बीर ने इस लैब से राब्ता किया जिसकी इसे रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन उसे जानकर हैरत हुई कि इसकी बीवी के नमूने लैब तक नहीं पहुंचे। शब्बीर ने दोबारा इस लैब टेक्नीशियन से राब्ता किया, जिसने इस मर्तबा इसे दूसरी लैब की रिपोर्ट सौंप दी। फिर शब्बीर ने डायरेक्टर हेल्थ और मुतालिका SHO के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। दूसरी जानिब प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन ने इसे मरीजों को धोखा देने के लिए कई सेहत हुक्काम और बाज डायग्नोस्टिक सेंटर्स के बीच मिली भगत करार दिया। कंसर्न लैब असिस्टेंट जहाँ से मैंने करवाया था CHC नरवाड़ा से मुदस्सिर अहमद से, उनको मैंने कॉल करके बोला भैया आपने ये टेस्ट जो हमें दी है रिपोर्ट ये कहाँ पे किया। उन्होंने किसी और लैब का बोला, तो मैंने उनसे कन्फर्म करने के लिए कहा कि अगर आपने मॉडर्न की रिपोर्ट दी है तो टेस्ट किसी और जगह हुआ, ये कैसे है। तो उस लैब पे जो नाम उन्होंने दिया वहाँ पे भी सैंपल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना वहाँ पे वो टेस्ट हुआ है। यह एक बहुत बड़ा माफिया है जो लोगों को 2-2 हाथों से लूट रहा है और दिमागी तौर पे भी लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इखलाकी तौर से। बड़ी अफसोस की बात है, 5 साल से मैं अथॉरिटी को कंटिन्यू कहता रहा हूं कि आपके एम्प्लॉयज वहां सैंपल्स ले रहे हैं, इन पर आप पाबंदी लगाए। लेकिन आज ये माहौल हुआ, एक आदमी के साथ ये मसला हुआ है जिसने मेरे को भी ये लेटर लिया। अब मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं कि मैं जाके उसको लॉक लगाऊं या कुछ करूं। मैं अथॉरिटी से अपील करता हूं कि वो इस चीज़ों को देखें, इवन LG साहब से भी, ड्यूकॉम साहब से भी, डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज से भी और CMO श्रीनगर से।
ये बात सामने आई है कि महकमे सेहत के कुछ अहलकार जिनके खुद के लैब्स और केमिस्ट की दुकानें हैं को मारूफ डायग्नोस्टिक सेंटर के लेटर हेड्स दिए गए हैं और वो अक्सर टेस्ट की फर्जी रिपोर्टें जारी करते हैं। न्यूज 18 उर्दू का इस लैब टेक्नीशियन से फोन पर राब्ता हुआ। इसने पहले बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन बाद में फोन किसी और के हवाले कर दिया। इस फोन कॉल के फौरन बाद शब्बीर को भी इस लैब टेक्नीशियन के नंबर से कॉल आई। इस बार एक खातून इसे समझा रही थी कि इस मामले को उजागर ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुदस्सिर बोल रहे हैं? हाँ मुदस्सिर, हाँ हम न्यूज 18 उर्दू से बोल रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा बोलिए। आपके यहाँ रिसेंटली एक केस आया था शब्बीर साहब का। हाँ उनको आपने टेस्ट के लिए बोला था। बिल्कुल। हाँ, बाद में रिपोर्ट्स जो उनको आपने दी थी वो मॉडर्न डायग्नोस्टिक लैब की आपने रिपोर्ट्स उनको दी थी। नहीं एक्चुअली सर आप सुनिए सर क्या बात है, मैंने इसको टेस्ट करवाया है। मैंने इसको सैटरडे को टेस्ट किया। इसने बोला मुझे संडे को डॉक्टर हयात भट्ट को दिखाना है। हाँ। मैंने उसको व्हाट्सएप पे ही भेजा, वो वही LDPL का जहाँ का मैंने किया है ना सर। हाँ। वहाँ आपने वो टेस्ट कहाँ पे कराया है इसको, किस लैब में करवाया? LDPL है लैब, तारानगर LDPL लैब। कौन सी लैब? LDPL लैब कॉर्प। अच्छा, तो इसके पास मॉडर्न का कहाँ से आ गया फिर? मॉडर्न का कैसे आपने इसको दिया? एक मिनट सर आप सुनिए ना सर, पहले मैं बताऊंगा ना क्या हुआ कि मैंने इसको संडे को ही वो व्हाट्सएप पे भेजा। इसने बोला कि मुझे हयात भट्ट को दिखाना है। अच्छा। तो वो मुझे मिस प्रिंट से, मतलब मैं प्रिंट आउट निकालता है ना, उसी से मिस प्रिंट से मतलब मॉडर्न का पेज निकला उसमें। बाकी मैंने टेस्ट किए, आप चेक कर सकते हैं, वो मैंने किया है ना कि वो मुझे ओरिजिनल की मेरे पास भी है लैब कॉर्प LDPL का, और मैंने कुछ नहीं किया है। वही मतलब प्रीमियस पेज दूसरा वाला। आप ये प्रिंट इसका खुद ही निकालते हैं, लैब से इसका प्रिंट होके नहीं आता है, आप खुद निकालते हैं इसका प्रिंट। आप जानते हैं ये जुर्म है, ये एक माफिया चला रहे हैं आप, आपको पता है आपको सजा मिल सकती है इसके लिए। जरूरत है इसलिए मैं मतलब ये वो जल्दी में हुआ, मतलब मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं इसको गलत करूं। मैंने टेस्ट किया है। आप सर आप पहले मुझे आप ये बताइए, पहले मुझे आप ये बताइए, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आप कैसे लोगों को सजेस्ट करते हैं कि कहाँ पे उनको टेस्ट कराना चाहिए? मुझे बताइए, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आप कैसे लोगों को सजेस्ट करते हैं कि उनको टेस्ट कहाँ कराना चाहिए? हेलो जी। वादी कश्मीर में सेहत के शोबे में बड़ा माफिया काम कर रहा है, जहां करोड़ों रुपए का सरमाया दांव पर लगा हुआ है। डॉक्टर्स मरीजों को अपने मुकर्रा डायग्नोस्टिक सेंटर में वसी पैमाने पर टेस्ट करवाने पर सिर्फ इसलिए मजबूर करते हैं कि इन्हें इनका कमीशन मिलता है, और अगर मरीज किसी और लैब से टेस्ट करवाता है तो इसे इस डॉक्टर के गुस्से का सामना भी करना पड़ता है। क्या ये इंसाफ है? क्या डॉक्टरों के अजीम पेशे में यही तालीम दी जाती है? कई सवाल हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। हुक्काम को अब सख्ती से काम लेने की जरूरत है और इस केस को एक मिसाल के तौर पर बनाने की जरूरत है। न्यूज 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जारी करदा अहकामात के मुताबिक वादी कश्मीर में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस तकरीबन 3 माह तक बंद रहने के बाद दोबारा खोले गए। तलबा और असातिज़ा एक बार फिर ऑफलाइन तालीम शुरू करने के लिए पुरजोश नजर आए। अगरचे आज कॉलेजेस में शिरकत करने वाले तलबा की तादाद मुजव्वज़ा इम्तिहानात की वजह से कम थी, ताहम कॉलेज इंतजामिया ने इस बात को यकीनी बनाया कि कोविड के तमाम रहनुमा खतूत पर सही तरीके से अमल किया जाए। काबिल जिक्र है कि यूटी भर में कोविड के मामलात में कमी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तालीमी इदारों के खोलने का फैसला किया था। समाज के तमाम तबकों की तरफ से इस फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है।
कॉलेज बहुत टाइम के बाद खुल चुके हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कॉलेज जाके। आज बहुत अरसे से हम घर पे बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे, हम भी चाह रहे थे कॉलेज खुल जाए, हम भी कॉलेज फिर से जो है पढ़ाई अपनी शुरू करें फिर से। अच्छा है कॉलेज में दिया है कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर, डिस्टेंसिंग अच्छा है कि उससे पढ़ाई करेंगे और कोविड ना फैले, ताकि वो अगर पढ़ाई भी सफ़र नहीं होनी चाहिए इसकी वजह से, तो उसके ऐसे भी मुझे लगता है फॉलो करनी चाहिए, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका ही हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब कॉलेज खुले। एक अच्छे तरीके से इन्होंने खोला है, एक गेट पे ही चेक कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हुई है, जिसकी हुई है उसकी चेक कर रहे हैं, और टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं, मास्क का अच्छा ख्याल रख रहे हैं यहाँ पे। 100% care shall be taken so far as COVID SOPs are concerned. एंड आई एश्योर यू कि माशाल्लाह कॉलेज अच्छी तरह से काम अपना कर लेगा। मेरी फैकल्टी आई हुई है और फैकल्टी मेंबर्स के साथ मैं आज भी मीटिंग ले रहा हूँ। मेरे 2-3 मीटिंग्स है, SOP की एक कमेटी है उसमें भी ये कर लेंगे, डिसिप्लिन कमेटी मेरी है तो वो भी मीटिंग कर। तो जम्मू कश्मीर में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार थम रही है, जिसके बाद हुकूमत ने यूटी में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल खोलने का ऐलान किया है। जम्मू में भी 9वीं जमात से ऊपर के स्कूल खोल दिए गए हैं। ताहम मुकम्मल वैक्सीन शुदा तलबा को ही स्कूल आने की इजाजत दी गई है, जिसकी वजह से तलबा की तादाद में कमी देखी गई। दूसरी तरफ तालीमी इदारों की इंतजामिया SOPs को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दसवीं जमात में ज़ेर तालीम सीमा बेहद खुश हैं क्योंकि काफ़ी अरसे बाद उन्हें स्कूल में हाजिरी का मौका मिला है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गांधीनगर जम्मू की तालिबा सीमा की तरह हज़ारों तालिबात भी खुश हैं कि अब वो बाकायदा ऑफलाइन तालीम हासिल कर रही हैं। कोरोना की वजह से सीमा और उनके जैसे दूसरे तलबा मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन तालीम पर ही मुनहसिर थे, जिसके लिए उन्हें काफ़ी तकनीकी दुश्वारियों के साथ साथ मुतादिद मसाइल का सामना करना पड़ता था। सीमा का कहना है कि बोर्ड के इम्तिहानात बिल्कुल करीब हैं और अब वो रूबरू बातचीत के जरिए असातिज़ा से मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में अपने तमाम शुकूक व शुबहात को दूर करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा, घर से बाहर निकले, हमें भी यही था कि घर से बाहर निकलना है बस, अब आगे स्कूल तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो कुछ डाउट्स हमारे रहते थे ऑनलाइन में वो हम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते थे और स्कूल आके हम सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पा रहे हैं। और हमारी सुबह योगा क्लास भी हुई थी, हमें बड़ा अच्छा फ्रेश फील हुआ है और जो हमारे कंसेप्ट्स जो क्लियर नहीं हो पा रहे थे वो हमारे क्लियर हो रहे हैं। हमें सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, हमने सैनिटाइज़र साथ रखा हुआ है, मास्क वेयर किया हुआ है, तो हम सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। दूसरी तरफ हाई स्कूलों के असातिज़ा और इंतजामिया भी ऑफलाइन मोड की तालीम के लिए पूरी तरह तैयार है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि सिर्फ इन तलबा को स्कूल के अहाते में दाखिल होने की इजाज़त है जो मुकम्मल तौर पर वैक्सीन ले चुके हैं। सुबह के औकात में आने वाले तलबा के लिए खुसूसी योगा सेशन भी शुरू किए गए हैं ताकि तलबा को ज़रूरी क़ुव्वत मदाफ़त हासिल हो और वो कोविड से मुताल्लिक़ तनाव से निजात हासिल कर सके। जो क्लास में फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है बच्चे के साथ वो बहुत ज़रूरी है, नो डाउट। तो उसमें ऑनलाइन भी चलो हमने जैसे तैसे हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अच्छे से अच्छी तरह कर सके, बट फिर भी आती हैं प्रॉब्लम्स। कई बार बच्चों को हम कहते हैं अपने क्लास अटेंड नहीं की थी, मेरा रिचार्ज ख़त्म था, आपने क्लास अटेंड नहीं की, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो फिर वो थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम रहती थी। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन क्लासरूम में ये है कि बच्चा जो है उसको कोई प्रॉब्लम आएगी वो ऑन स्पॉट पूछेगा और वो देखता भी है कि मेरे क्लास में वो बच्चा जवाब दे रहा है, वो रिस्पांस दे रहा है, तो उसको भी एक किस्म की इंकरेजमेंट मिलती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मॉर्निंग असेंबली जैसे स्टार्ट होती है या अपना योगा सेशन या अपनी एक्सरसाइजेज जो इनको करवाएं उसमें इंक्लूड करें, क्योंकि इस टाइम घर बैठ के जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं और बच्चों में कुछ चीज़ें हैं, बच्चे बहुत अपने आप को सप्रेस्ड फील करते हैं, उनको बाहर लाना, उनको उभारना उनकी पर्सनैलिटी को और उनको ये बताना हमारा ही कर्तव्य है टीचर्स का, क्योंकि जो एक सही रोल टीचर होता है, सही मेंटर होता है उनके लिए, वो अगर उनको सही रास्ता दिखाए तो बच्चे अच्छे रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। इंतजामिया और स्कूल मैनेजमेंट का असल इम्तिहान जूनियर क्लास के तलबा के लिए महफूज माहौल में तालीम की फराहमी को यकीनी बनाना होगा, क्योंकि आइंदा हफ्ते जूनियर क्लास के तलबा के स्कूल खोल दिए जाएंगे। क्योंकि इन जूनियर तलबा को वैक्सीन नहीं लगाई गई है, इसीलिए इंतजामिया को मौसर इक़दामात
करने होंगे। जाहिर तौर पर जो स्कूल मैनेजमेंट है वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ जहाँ स्कूल खुले हैं, फ़िलहाल 9th से आगे 12th तक जो क्लासेस शुरू हुए हैं, तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है। और ज़ाहिर तौर पर इसमें अब जो पेरेंट्स हैं उनकी भी एक ज़िम्मेदारी है कि जो बच्चे उनके स्कूल जा रहे हैं उनको वो समझाए कि वो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस और SOPs का ख्याल रखें, ताकि उनको स्कूल जाते वक्त और जो वो अब ऑफलाइन एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें उनको कोई दिक्कत ना हो। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हाल ही में कोविड की सूरत हाल में बेहतरी के बाद स्कूल खोलने का फैसला किया है। हायर क्लासेस के स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन कई मसाइल अब भी दरपेश हैं। सबसे अहम मसला स्कूलों की इमारतों में जारी कोविड टेस्टिंग मराकज़ हैं, जिसकी वजह से तलबा और टीचिंग फैकल्टी बाहर बैठने पर मजबूर हैं, क्योंकि महकमे सेहत के अहलकार दिन भर टेस्टिंग में मसरूफ रहते हैं। स्कूलों की इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत को इस मसले को तरजीही तौर पर देखना चाहिए और इन मराकज़ को किसी और जगह पर मुंतकिल करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये जो कोरोना टेस्टिंग सेंटर पे लगभग पिछले 8 महीने उसके स्कूल के अंदर चल रहा है, इसको लिफ्ट किया जाए ताकि हम विद इन नो टाइम तो ताकि हम जो बिल्डिंग है इसकी हम सैनिटाइजेशन करा सकें और ताकि बच्चे जो हैं 21 से जो रूटीन क्लासेस हैं वो शुरू हो सके। कितना रिस्क होता है अगर ऐसे, कितना रिस्की है अगर ये कंटिन्यू रहेगा? तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगी। हम मुझे लगता नहीं हम 600 बच्चों को कैसे अकोमोडेट इस छोटे से पोर्शन में करेंगे, क्योंकि जहाँ पर हमारे पास ICT लैब है, अटल लैब है, जो मैक्सिमम हमारे नर्सरी का रूम है, हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूल लिफ्ट किया जाए। आगे बढ़ेंगे। खबर पुंछ के मेंढर से है, जहां LOC के करीब असलाह बरामद किया गया है। फौज और पुलिस ने मुश्तरका तलाशी कार्रवाई के दौरान देरी दबसी गांव में हथियार बरामद किए, जिनमें एक AK-47, एक मैगजीन, 2 पिस्तौल मैगजीन शामिल है। पुलिस इस मामले की मजीद जांच कर रही है। सर्च ऑपरेशन जनरल इलाका मेंढर में देरा दबसी इलाके में लॉन्च किया हुआ था। उसमें हमें कुछ मशकूक सामान मिला, जो बाद में सर्च करने के बाद उसमें हमें कुछ एम्यूनिशन मिला, आर्म्स एम्यूनिशन मिला है, जिसमें हमारे पास एक AK है, एक मैगजीन है, 2 पिस्टल्स हैं, 2 मैगजीन है, और उनको हमने मौके पर सीज किया है। इसमें FIR लगाकर फर्दर तफ्तीश। बडगाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस से इस सिलसिले में 4 चोरों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 9 गाड़ियां और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता कई दिनों से गाड़ियों की चोरी के वाकयात पेश आ रहे थे। इस सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और इस दौरान 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO बडगाम महबूब हुसैन के मुताबिक इस मामले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं और पुलिस लगातार लोगों की बेहतरी और लोगों को इंसाफ देने के लिए काम कर रही है। ड्रग्स के बारे में तो हम काम कर ही रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ड्रग्स का ये जो मैंने से ये ख़त्म हो जाए। अभी आज की जो बात कर रहे हैं, हमें बहुत दिनों से यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, इतला मिल रही थी कि हमारे इलाके से कुछ गाड़ियाँ चुरा के या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से चुरा के या बाहर रियासत से भी गाड़ियाँ चुरा के यहाँ ला के उनका नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन चेंज करके, उनका कलर भी कुछ गाड़ियों का चेंज करके, उनकी फेक एंड फोर्जेस डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके फिर यहाँ सस्ते दामों पे बेची जा रही है। उसमें हमें फिर 9 तारीख को 9 फरवरी को हमने एक FIR रजिस्टर किया। तो उस इन्वेस्टिगेशन के द्वारा हमें पता चला कि एक बड़ा ये है ना मुनज़्ज़म ग्रुप हैं, जो बड़े मेटिकुलसली मतलब वो बड़ा प्लानिंग के साथ ये काम करते हैं। उन बाहर से गाड़ियाँ लाते हैं, यहाँ से चुरा के लाते हैं, उनके कलर चेंज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन चेंज करते हैं। इवन कुछ गाड़ियों में हमने देखा कि चेसेस इंजन नंबर भी चेंज किया हुआ है। उस पर हमने फिर इन्वेस्टिगेशन करके 4 बंदों को हमने अरेस्ट कर लिया। तो हाँ, उसमें हमने 9 व्हीकल्स और 2 मोटरसाइकिल्स रिकवर किए हैं। टोटल हमने 11 स्टोलन व्हीकल्स रिकवर किए हैं आज की डेट तक। 2-4 एक्यूज्ड अभी भी हैं जो हमें उनका नाम आया है, जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के भी हैं, तो वो अरेस्ट होने का मुतवक्का है। इंशाल्लाह वो जल्दी अरेस्ट हो जाएंगे। उसके अलावा और भी रिकवरीज गाड़ियों की होने वाली है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मल्लबुचन मागाम और इसके मुल्हिका इलाकों में उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब आर्मी ने मरदमशुमारी के दौरान एक रिहायशी घर में मुबैना तौर पर मकतूल ईरानी फौजी कमांडर
कासिम सुलेमानी और दूसरे ईरानी शहीदों की तस्वीर को हटाकर जला डाला। इस वाकये के फौरन बाद लोग घरों से बाहर आए और एहतजाजी जुलूस की सूरत में मागाम मेन बाजार पहुंचे। एहतजाज के दौरान पथरावजनी भी हुई। एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान कई लोग जख्मी हो गए। हालात को देखते हुए फौज के 2RR के कमांडिंग ऑफिसर ने मल्लाबूछन गांव पहुंचकर घर का दौरा किया और कासिम सुलेमानी की तस्वीर दोबारा लगाई और अपने फौजी एहलकार की गलती कबूल करके लोगों से माफी मांगी। कमांडिंग ऑफिसर ने फौजी एहलकार के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया। इस तरह यह मामला अफाम तफहीम के साथ हल हुआ। फिलहाल इलाके में हालात पुरअमन है। फोटो ईरान पत गई यह क्या क्या ईरान फोटो तो गई ना यह दहशत गर्द पे गई वो जोर यतस तो पे आव अथ सीओ आज मैं माफी तो असा त्रो पे बस बच्चे ने जो गलती की है कि उसके लिए हम अपोलोजाइज करते हैं कि उसको कुछ पता नहीं था इस बारे में। ये इनका धर्मगुरु है शिया लोगों का, तो बार बार वो अपोलोजाइज कर रहा था कि शहीद कासिम सुलेमानी साहब की वो फोटो वहाँ पे थी। शायद उसको कुछ लगा था कि कुछ ये कुछ गलत ये फोटोग्राफ लगा हुआ है। तब सीओ साहब ने बार बार रिपीटेडली इसको अपोलोजाइज करके मामला सॉर्ट आउट कर दिया। मसला होता देयर वाज अ कन्फ्यूजन बिटवीन द लोकल पॉपुलेशन और जो यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी के बीच थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी सॉर्ट आउट हो गया सारा। तो हम यहाँ मलबूशन में ही है, जितने भी यहाँ पे लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमने बात की तो वो सारा कुछ सेटल डाउन होके मैं अब सारे जितने भी यहाँ पे हमारे कम्युनिटी में जो लोग हैं मैं इनसे अभी दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके आप पीस एंड हारमोनी। मल्लाबूछन बागा में पेश आए इस वाक़े पर आगा सैयद हादी और आगा सैयद मुंतजिर ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मजहबी जज्बात से खिलवाड़ करना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। काफ़ी है अगर उन्होंने अपनी गलती की जो है माफ़ी मांगी है तो हमें भी वो कबूल करनी चाहिए। जो आज के हालात हैं उन पे हमें बड़ी कड़ी नज़र रखनी है। जो आजकल हिंदुस्तान में हो रहा है, हिजाब का मसला है, दूसरों का मसला, तो अभी अगर आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं वो सामने आए हैं और उन्हें माफ़ी मांगी है तो इसी पे इस एहतजाज को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मलाइज करनी चाहिए। इस तरीके से हमारे जवानों पर तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया उसकी भी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मेरा ये सवाल है इंतज़ामिया से, अगर आप कह रहे हैं कि अफसर से गलती हुई है तो जवानों पर यह तशद्दुद क्यों किया है? यौम विलादत बासादत हज़रत अली इब्ने अबी तालिब की मुनासबत से पांजश मागाम में आज एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसकी सदारत आगा सैयद मोहम्मद हादी ने की। मुसाबिक़ा हुस्न क़िरत और हिफ्ज़ कुरान करीम पर मबनी इस तकरीब में क़िरत और हिफ्ज़ कुरान जैसे मुकाबले शामिल थे। मुक़र्रिर ने हज़रत अली की सीरत तैयबा पर चलने की तलक़ीन की। आइंदा नस्ल है उनको कुरान के नूर से मुनव्वर करना चाहते हैं और पैगाम जैसे उखुवत का, इंसानियत का, कुरान के साये में अपनी ज़िंदगी बनाने का, ये एक बड़ा पैगाम है जो हमें मकतब अहले बैत से मिलता है और ख़ुद इमाम अली अलैहिस्सलाम के कलाम से भी कि जो भी कुरान के साथ बैठेगा उसको हिदायत में ज़्यादती होगी और जहालत में उसको कमी। हज़रत अली की यौम विलादत बासादत की मुनासबत से यकमनपुरा पट्टन, ऋषिपुरा, हांजीवीरा पट्टन, बीरवा के अच्छाहमा और दीगर मकामात पर भी तकारीब मुनक़िद हुई जिसमें बच्चों के साथ साथ काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा ने हज़रत अली की सीरत पर रोशनी डाली और आपकी सीरत पर चलने की तलक़ीन की। मुख्तलिफ मकातिब के बच्चों ने तालीमी मुजाहरा किया। दोहस मज न खुदायस नाराज कर या दोहस मज न रसूलस नाराज करे कुछ मुसलमान सिंध खतर ईद। लिहाजा ये जश्न ये ईद युस जन अस मनावान छे ये जिक्र करान छे आ जिक्र सहित सहित ये फिक्र करान छे ये फिक्र चाहे अख जिंदगी अता करान, अख हस अता करान, अख हरकत अता करान। अगर हम चाहें तो अली अलैहिस्सलाम आज भी हमारे दरमियान मौजूद है कलाम अली की सूरत में। कलाम अली की सूरत में जो भी चाह रहा है अली अलैहिस्सलाम से आज बात करे आज भी कर सकता है कलाम अली की सूरत में। बस यही पैगाम है कि नहजुल बलागा पढ़िए, खुतबात अली अलैहिस्सलाम पढ़कर उन पर गौर कीजिए और उन पर अमल करने की कोशिश करें।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का आज यौम विलादत मनाया जा रहा है। वादी भर में भी मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का एहतमाम किया गया। बडगाम में भी गुज़िश्ता शब से ही तकारीब मुनक़िद हुई। इन तकारीब में अमीरुल मोमिनीन के हालात ज़िंदगी और उनकी तालीमात पर रोशनी डाली गई। आज भी बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर हज़रत अली की शान में सबीलें लगाई गईं, जो अक़ीदतमंदों ने रज़ाकाराना तौर पर लगाई थी। कहीं पर पानी पिलाया गया तो कहीं पर दीगर खाने पीने की चीजें नजर की गई। लोगों का कहना था कि यौम विलादत हजरत अली के मौके पर वो अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इंसान हजरत अली के तालीमात पर चले तो वो कभी भी दीन इस्लाम से नहीं भटकेगा। पजन असे ब्रोह कुन पकुन जे अस हावो पज पठन अस छ हजरत अली अलैहिस्सलाम सिंदस मिशनस पठन पकान यथ पठन एक अजीम शायरन वोनमुतन ज नार खसलत छ बु लहबी शरन शुबान नार खसलत छ बु लहबी शरन शुबान जे छे नस्बत भूत राबस ज पजी खाकसार आसुन। थोड़ा सा छोटा सा एक सबील लगाई है इस मुनासिबत से कि मौलाए कायनात जो कि एक ऐसी हस्ती है जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलियुम बाबुहा, तमाम इल्म के चश्मे मौलाए कायनात के दर से निकलते हैं। तो उसी अलकायम स्टूडेंट्स एसोसिएशन कश्मीर और मकतब इमामिया के इश्तराक से मरकजी इमाम बारगाह गांगो पुलवामा में जश्न विलादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के उन्वान से एक अजीमुश्शान महफिल का इनेकाद हुआ। महफिल की सदारत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अमजद अली साहब ने की। इस मौके पर मकतब इमामिया से वाबस्ता तलबा और तालिबात ने नात, मनक़बत और मौज़ूआत पेश किए। उलमा इकराम ने सीरत और विलादत बासादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर तफसीली रोशनी डाली। उधर पुंछ में भी हजरत अली के यौम विलादत बासादत की मुनासबत से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पुंछ में अंजुमन जाफरी की जानिब से इमाम बारगाह में महफिल सईद का इनेकाद किया गया। उलमा इकराम ने शुरका ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात पर अमल करने की हिदायत दी। इस्लाम के लिए बदर से लेकर के ओहद और खैबर और खंदक और तमाम वो सरये और तमाम वो जंगें कि जो इस्लाम की इशाअत के लिए, नशारत के लिए इस्लाम की तरफ से मुश्रिकों के मुकाबले में, काफिरीन के मुकाबले में लड़ी गई, उनमें इन्होंने हजरत अली की यौम विलादत के मौके पर लेह में इमामिया जामा मस्जिद में तकरीब का इनेकाद किया गया। कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर तकरीब का इनेकाद सादा तरीके से किया गया। अल्लाह की तरफ से किताब नाजिल की, उन पर मैं ईमान रखती हूँ, तो बेहक़ ये खान काबा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे लिए जो ताज़ा मौलूद है, जो दुनिया में आने वाली है, मेरे लिए आसान फरमा। तो उस मौके पर अल्लाह की तरफ से एक मौजज़े के तौर पर खान काबा की दीवार जो है। आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करगिल ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ताउन से सीनियर सिटीजन के लिए कल्चरल हॉल में तकरीब का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का थीम था लीगल सर्विस टू सीनियर सिटीजन। सिखों के एक वफ्द ने वादी में रिहाइश पजीर कश्मीरी सिखों को अकलीती जुमरे में लाने और नौकरियों की रिजर्वेशन का सरकार से मुतालबा किया है। अनंतनाग में ज्ञानी राजिंदर सिंह की क़यादत में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिख वफ्द ने कहा कि उनके मुतालबात को लेकर वो कई बार जम्मू कश्मीर के एलजी से मुलाकात कर चुके हैं और एलजी की जानिब से इन्हें मुस्बत रद्द अमल मिला है। वफ्द ने कश्मीरी पंडितों के तर्ज पर इनके लिए पीएम पैकेज वागुजार कराने का भी मुतालबा किया, जबकि माजी की हुकूमतों पर इन्हें नजरअंदाज करने का भी इल्जाम लगाया गया। इस मौके पर वफ्द ने गुरुद्वारों के अमलाक और आराजी के तहफ्फुज का भी सरकार से मुतालबा किया। पंडित रह रहे हैं नॉन माइग्रेंट, उनको प्राइम मिनिस्टर पैकेज का कोटा दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमें इस बात की बड़ी खुशी है। तो यही कोटा हम लोग भी मांग रहे हैं। जो कश्मीर में सिख रह रहे हैं इस वक्त, जो कश्मीर के पुश्तनी बाशिंदे हैं, सुतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, लेकिन हम भी पीछे बैठने वाले नहीं है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुद्र की तलाश। कि जितने भी कश्मीर में गुरुद्वारे हैं जो लैंड माफिया ने
लैंड माफिया जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारी जमीनें गुरुद्वारों की खा ली है आज पिछले 100 साल से, और दुकानों में कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम उनसे भी इल्तिजा कर रहे हैं कि भाई ये जो गुरुद्वारा, मंदिर या मस्जिद ये पाक जगह है, और इनकी जो जायदाद है या जो दुकानों में आप बैठे हो 50-60-70 रुपया आप मंथली किराया दे रहे हो, ये बड़ी बेइंसाफी है। इनको छोड़ दो, और जो हमारी जमीन आपने हड़प की हुई है लैंड माफिया से हम कह रहे हैं उसको भी मतलब उसको वागुजार किया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। अच्छाबल रफियाबाद में एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी अल्ताफ मलिक ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो माशरती तब्दीली में अहम किरदार अदा करें और अपनी तवानाइयां मुस्बत चीजों में लगाएं। उन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद अवामी नाराजगी को मद्देनजर रखते हुए कमीशन को दोबारा सोचने की जरूरत है। सरकार ने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया है, तो वो यहाँ के लोगों को जो उनकी एस्पिरेशंस है, लोगों के ऐन मुताबिक वो डिलिमिटेशन रिपोर्ट नहीं है, उसमें खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं। आपके जरिए से मेरा पुरजोर मुतालबा है सरकार से कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो रिपोर्ट जिसको पब्लिक डोमेन में लाया गया है, इसमें दुरुस्तगी करने की जरूरत है, इसको ठीक करने की जरूरत है। इसी तरह से हमारा जो रफीआबाद का जो खूबसूरत हमारा इलाका है, यहाँ के लोग भी खूबसूरत है, इलाका भी खूबसूरत है, तो इसको इसी नाम से मंसूब रखा। उड़ी टाटा सोमो मालिकान यूनियन ने चंदनवाड़ी और बोनियार सोमो स्टैंड्स में ड्राइवरों की तरफ से गैर जिम्मेदाराना सलूक पर बरहमी का इजहार किया है। सोमो स्टैंड उड़ी के ड्राइवरों ने कहा कि उन्होंने कई बार इस मामले में हुकाम से राब्ता किया, लेकिन उड़ी से बारामूला तक मुसाफिर खिदमात को हमवार करने के लिए कुछ नहीं किया गया। इनका कहना था कि सोमो ड्राइवरों की तरफ से इन्हें चंदनवाड़ी और बोनियार स्टैंड पर रुकने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर, हमारी यहाँ से गाड़ी सवारी भर के बारामूला के लिए जाती है। फर्स्ट टाइम जब गाड़ी चंदनवाड़ी स्टॉप पे रुकती है, वहाँ सवारी ड्रॉप करने के लिए, तो वहाँ पे वो एजेंट आ जाता है वहाँ का, वो क्या करते हैं वहाँ ज़बरदस्ती से चाबी निकालते हैं हमारी गाड़ी की। फिर उसके बाद में क्या होता है, वहाँ हाथापाई पे नौबत आती है। यही सिस्टम हमारा आगे चले जाए, आप 10 किलोमीटर आगे बोनियार में, वहाँ पर भी यही हाल है। हमने 2-3 बार आरटीओ साहब को भी बोला कि ये रोड पे स्टैंड है, खुदा के लिए इनको थोड़ा साइड करें। अगर सर हम तो स्टैंड से कोई नहीं, सब रोजी रोजी कमाते हैं, लेकिन किसी तरीके की। तो अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर हमें ये हमारे रोजगार पे असर पड़ता है सर हमारे रोजगार में। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए। रामबन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मेंबरशिप मुहिम के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी ए मीर समेत कई दीगर सीनियर लीडरान ने शिरकत की। मुकर्रिर ने मौजूदा दौर में मुल्क और जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर बीजेपी हुकूमत की सख्त अल्फाज में तनकीद की। वहीं हदबंदी कमीशन के ड्राफ्ट मसवदे पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मिनिस्टर ने, देश के प्राइम मिनिस्टर ने इतनी मजबूत एश्योरेंस दी थी कि डिलिमिटेशन कमीशन पैरामीटर्स के बुनियाद पर फैसला करेगा, जो उसके मेरिट्स होते हैं, आबादी हो, दूरी हो, कम्युनिकेशन मीन्स हो, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उस बुनियाद पर। मगर अब जो ये लीक रिपोर्ट आया, इसको हम डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट नहीं कहते, इसको हम डिवास्टेशन कमीशन का रिपोर्ट कहते हैं। अगर यही रिपोर्ट रहता है तो मुझे भरोसा है, जो मैंने पहले भी कहा कि इनका डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट रिजेक्ट करने का ताकत हमारे जम्मू कश्मीर अवामी कमीशन को है। जब अवामी कमीशन कल निकलेगा और ये उस पर फैसला देके, कांग्रेस पार्टी अश्योर करती है, अगर कांग्रेस पार्टी को ये ताकत देते हैं, ये मौका देते हैं, कांग्रेस के एमएलए जिता देते हैं, ये किस शेप में भी डिलिमिटेशन लाएंगे, हम उसको अंडू करने का काम करेंगे। जो लोगों को तकलीफ में डाला उसको सहूलियत में वापस लाने का काम करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले कठुआ के फौजी जवान अरुण कटल को जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना ने खिराज पेश किया। रैना ने शहीद जवान के घर हाजिरी दी और अहले खाना से ताजियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। रैना ने शहीद जवान के अहले खाना की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाई। अखनूर क्षेत्र के चकमलाल के विशाल जी और डोरी डगेर के हवलदार जुगल किशोर साहब ने भी देश के लिए शहादत दी है। उस बर्फीले तूफान में 7 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। पूरा देश अपने इन जांबाज वीर सैनिकों को नमन करता है, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, पराक्रम और
राष्ट्र हित में अपना सर्वस्व बलिदान दिया। पूरा देश अपने इन जांबाज वीरों की शहादत को नमन करता है, इनको सलूट करता है कि जो जम्मू कश्मीर के जांबाज वीर सैनिक देश हित में राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते हैं, उनके परिवार के लिए उन्होंने जो जिस प्रकार अन्य राज्यों में आर्थिक सहयोग सरकारें करती हैं, उसी प्रकार यहाँ 2 लाख से बढ़ाकर 25 लाख। जम्मू पुलिस ने मुलजिमीन को अदालतों में मकामात की समाअत में हाजिरी के लिए एक अनोखा तरीका इख्तियार किया है। पुलिस की टीम लाउड स्पीकर के साथ मुलजिमान की रिहाइशगाहों का दौरा करती है और उनसे अदालतों में हाजिरी की दरख्वास्त करती है ताकि वो अपने मुकदमात की समाअत कर सके। बाज़ दफ़ा पुलिस की टीमें इलाके में ढोल पीटती हैं ताकि मकामी आबादी भी मुलजिमान को कानून की पासदारी की तरगीब दे। साल 2015 में जारी किया गया। इसके बावजूद भी मुलजम मजकूरा हाजिर अदालत न हुआ। अदालत मिजाज ने मुलजम मजकूरा को इश्तियारी मुलजम करार दिया है और अदालत मिजाज ने 1 माह का वक्त दिया है। अगर अदालत मिजाज में पेश ना होगा तो मुलजम मजकूरा की जायदाद कुर्क की जाएगी। स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम में आज डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। 24 फरवरी तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह डीसी बडगाम ने किया। इस टूर्नामेंट में खो खो, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसे खेल शामिल हैं। जिले भर के तमाम ब्लॉकों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। डीसी बडगाम शहबाज मिर्जा ने कहा कि जिले में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए काम जारी है और नौजवानों को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने और ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को खेलों की जानिब रागिब करने के लिए इंतजामिया पुरअज़्म है। हम जाते हैं किसी पंचायत लेवल में तो हार्ड वर्क करके डिस्ट्रिक्ट पे पूछने की कोशिश करता है, डिस्ट्रिक्ट में हार्ड वर्क करके स्टेट तक पूछने की कोशिश करें सर, तो हम कोशिश करते रहेंगे तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला है। यूथ सर्विस सपोर्ट से जो ये प्रोग्राम करते हैं ये बहुत ही अच्छे काम है, क्योंकि हम जो भी यूथ है स्कूलिंग वाले हो या नॉन स्कूलिंग वाले हो सब इन गेम्स में हिस्सा लेते हैं और इसके क्या होता है कि इनडायरेक्टली सब इन कामों से जो गलत काम होते हैं उनसे यहाँ में खेलने में इंटरेस्ट आते हैं उनमें। ये टूर्नामेंट जो है पहले इंटर पंचायत लेवल पर हुआ था, उसकी विनर्स टीम जो है वो इंटर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल रही है। यहाँ के विनर जो है वो यूटी लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट। मकसद जो है गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन का यही है कि यूथ जो हमारा है वो कंस्ट्रक्टिव कामों में लगे, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा लेते। ज़हनी तौर पर भी बच्चे फिर हेल्दी रहते हैं और जिस्मानी सतह पर बच्चों को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में इसके मार्शल आर्ट के लिए शुरू किया गया 6 रोज़ा ओरिएंटेशन कोर्स आज इख्तिताम पसीर हुआ। इस 6 रोज़ा खुसूसी तरबियती प्रोग्राम में मुख्तलिफ अजला के महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ने शिरकत की। महकमे की जानिब से कोविड जैसे हालात के बाद पहली मरतबा टीचर्स के लिए मुख्तलिफ खेलों के ओरिएंटेशन कोर्स शुरू किए गए हैं। और हमारे ये टीचर्स जो हैं और ये फील्ड स्टाफ जो है, हमने ये मुनासिब समझा हमारी डिपार्टमेंट ने कि इनको हम एक ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स जो है इनको कराएंगे, ताकि इनको ये तो प्रोफेशनली ट्रेंड है तो इनको सिर्फ एक ओरिएंटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि ये मुख्तलिफ गेम्स जो स्पोर्ट्स जो है दिन ब दिन इनमें इनके स्किल्स में, इनके टेक्निक्स में, इनके रूल्स में चेंजेस आती रहती है। उन चेंजेस को, उन टेक्निक्स को, उन स्किल्स को इन तक पहुँचाने में हमारे पास जो ट्रेंड जो हमारे पास रिसोर्स पर्सनल है उनसे हमने इनको ये ट्रेनिंग जो है ये ओरिएंटेशन कराई, ताकि जब ये वापस अपने स्कूलों में जाएंगे और लेटेस्ट टेक्निक्स के मुताबिक ये बच्चों को गेम्स जो हैं वो उन गेम्स में वो उनको तरबियत देंगे, ताकि हम। पुंछ के नेशनल स्टेडियम में नेशनल हॉकी कोच श्यामलाल शर्मा की 4थी बरसी मनाई गई। इस मौके पर हॉकी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें पुंछ की खवातीन की पावर हॉकी क्लब और श्यामलाल हॉकी क्लब के माबैन मुकाबला हुआ, जिसमें श्यामलाल हॉकी क्लब ने जीत दर्ज की। इस मौके पर शायकीन की बड़ी तादाद हॉकी मैच से लुत्फानंदोज हुई। पुलवामा हमले की बरसी के मौके पर बीती शब लाल चौक अनंतनाग में कैंडल मार्च निकाला गया। फॉर चर्च सीआरपीएफ के इस मार्च में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। इस दौरान हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर भी इस मौके पर मौजूद थे। अनंतनाग का लाल चौक अनंतनाग में सारे यहाँ से लोकल लोग हम यहाँ पर जमा हुए हैं। सॉलिडरिटी जो पिछला 14 फरवरी 3 साल पहले जो अटैक हुआ था
हम उसकी निंदा करते हैं। तो उसी उनके उनका वो रेस्ट इन पीस जो उसमें मार्टर हुए हैं सारे बंदे, उन सब के लिए हम आज यहाँ पर जमा हुए हैं। जिला रामबन में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से एक मशाल रैली निकाली गई। इसके बाद डाक बंगला रामबन में एक शाम शहीदों के नाम का इनेकाद किया गया। रैली और महफिल शाम की सदारत बीजेपी युवा मोर्चा के जम्मू कश्मीर सदर अरुण प्रभात सिंह ने की। डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने कहा कि हार्टिकल्चर महकमे से वाबस्ता गैर मेयारी अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें मुलव्विस पाया जाएगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। डायरेक्टर जनरल ने हंदवाड़ा में महकमे हार्टिकल्चर से वाबस्ता लोगों और अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में फौज ने इलाके के असातिज़ा के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग की सदारत 13 कुमाऊं के कमांडिंग अफसर कर्नल अमित मलिक ने की। मीटिंग के दौरान सरमाई तातीलात के बाद दोबारा स्कूल खोलने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तुलेल के पंचायती मेंबरान ने बडगाम में वाक़ जम्मू कश्मीर बैंक में पैदाशुदा तकनीकी खराबी को दूर करने का मुतालबा किया ताकि बैंक सारिफीन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मकामी पंचायती मेंबरान का कहना है कि बैंक का काम पिछले 10-12 दिनों से किसी तकनीकी खराबी से मुतासिर है। दूधमर्ग तराल के लोगों ने इन्हें जमीनों से बेदखल करने के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। इस मौके पर बीजेपी के मकामी लीडर अब्दुल रशीद भी मौजूद रहे और इंतजामिया तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार फॉरेस्ट एक्ट की बात करती है, वहीं दूसरी जानब इनको बेदखल करने की कोशिश की जाती है। डीपीएल डोडा में मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, जिसमें एनडीआरएफ की टीम ने यूटीडीआरएफ के साथ मुश्तरका तौर पर कुदरती आफात की सूरत में बचाव ऑपरेशन शुरू करने से मुतालिक डेमो दिखाया। एनडीआरएफ और यूटीडीआरएफ टीम डोडा के पास दस्याब तमाम साजो सामान को परेड ग्राउंड में मश्क के दौरान दिखाया गया। डीडीसी ने रेस्क्यू टीम पर जोर दिया कि वो किसी भी आफत से निपटने के लिए तैयार रहें। सोशल फॉरेस्ट्री महकमे ने गिलगाम कुपवाड़ा में आज रुई वाले सफेदों के मुतबादिल के तौर पर 5000 नए किस्म के सफेदे के दरख्त लोगों में तकसीम किए। डीएफओ सोशल फॉरेस्ट्री डॉक्टर फैयाज अहमद, डीडीसी, आवारा पंच और सरपंचों की एक बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।